তো হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। তো চারটি আশ্রমের কথা বলা হয়েছে। একটা হচ্ছে ব্রহ্মচারী, একটা গৃহস্থ, একটা বানপ্রস্থ, তারপরটা হচ্ছে সন্ন্যাস। সাধারণত ব্রহ্মচারী হচ্ছে 1 থেকে 25 বছর পর্যন্ত, এরা 1 থেকে 25 বছর পর্যন্ত গুরুগৃহে থাকবে। 25 থেকে 50 বছর পর্যন্ত হচ্ছে গৃহস্থ, আর প্রায় 50 থেকে প্রায় 75 বছর পর্যন্ত সাধারণত বানপ্রস্থ। আর এই বানপ্রস্থের পরে হচ্ছে যখন গুরুদেবের অনুমতি হবে তখন সে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারবে, সন্ন্যাস হবে। পরবর্তীতে বলা হয়েছে যে অর্জুন চিন্তা করলেন যে এই যুদ্ধে যে সমস্ত যুদ্ধ হচ্ছিল তার আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে, আপনজনদের সঙ্গে। এই যুদ্ধ হচ্ছিল কাদের সঙ্গে? পুরুষদের সঙ্গে। এই যুদ্ধে যদি সমস্ত পুরুষ বধ হয়ে যায় আর কি, তাহলে থাকবে কি নারী সমাজ। এবং নারী ও শিশুরা, যেহেতু নারীদের আমরা সাধারণত সবাই জানি যে নারীরা বাল্যকালে থাকে পিতার আশ্রয়, যৌবনকালে থাকে স্বামীর আশ্রয় এবং বৃদ্ধকালে থাকে সন্তানের আশ্রয়। তো এই যুদ্ধে যদি সমস্ত পুরুষ জাতি যদি মারা যায়, তাহলে এই নারীদের এবং শিশুদের রক্ষা করার মতো কেউই থাকবে না। তখন তারা অবাধে মেলামেশা করবে, বিভিন্ন ধরনের খারাপ কাজের দিকে ধাবিত হবে। তাই বর্ণসংকর হলো যারা ধর্মীয় বিধিবিধান না মেনে যথাচার জীবনযাপন করে, সন্তান উৎপাদন করে, সেই উৎপাদিত সন্তানকে বর্ণসংকর বলে। সর্বপ্রথমে মহাপ্রভুর আমরা জানি যে মহাপ্রভুর একটি বাণী আছে যে পৃথিবীতে যত আছে নগরাদি গ্রাম, সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম। মহাপ্রভুর এই বাণীকে কেন্দ্র করেই ছিল প্রভুপাদ এই বর্ণসংকর প্রজাতির মধ্যেই হরিনামের আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ছিল প্রভুপাদ সর্বপ্রথম আমেরিকায় হিপ্পিদের মাঝে এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের বীজ বপন করে গেছেন এবং সেই বীজ আস্তে আস্তে সমগ্র বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে গুরুকুলের ব্যবস্থা হয়েছে, বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থা করা হয়েছে। এভাবে আমাদের ধর্মীয় দিক দিয়ে সমগ্র বিশ্বব্যাপী প্রসার লাভ করেছেন। তো অর্জুন এভাবে এসব চিন্তা করছেন যে সমগ্র প্রজাতি যদি এভাবে অন্যায়ের দিকে, যে বিভিন্ন ধরনের খারাপ কাজের দিকে যদি ধাবিত হয়, তাহলে আমাদের সমগ্র সমাজ ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যাবে। এভাবে সে সমস্ত কিছু দিয়ে অনুধাবন করছে। তো আমাদের কর্মকাণ্ডের বিধি অনুসারে আর কি বিষ্ণুকে পূজার মাধ্যমে আমাদের যে পিতৃপুরুষেরা যে পাপ কর্মাদি করে এবং তাদের আত্মার সদ্গতির জন্য আমরা যে পিণ্ডদান করি এবং তারা একটা সূক্ষ্ম আত্মা রূপে মানে ঘুরে বেড়ায় এবং তাদের মুক্তি লাভ হয় না। তাই যে পিতৃপুরুষদের আত্মার উদ্দেশ্যে যে আমরা যে খাদ্যদ্রব্য ও জল উৎসর্গ করি, এটা বিষ্ণুকে উৎসর্গকৃত প্রসাদ সেবন করার ফলে যদি
তাদেরকে নিবেদন করা হয়, তাহলে কি হবে? সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবে, সমস্ত পাপ থেকে তারা মুক্তি লাভ করবে। পিতৃপুরুষদের উৎসর্গীকৃত ভগবত প্রসাদ উৎসর্গ করে পিণ্ড দান করতে হয় এবং তখন তাদের আত্মার যে পাপ কর্ম আছে সেগুলো থেকে মুক্তি লাভ করে শান্তি লাভ হয়। আমরা সাধারণত 4টি ঋণের সাথে আবদ্ধ, আমরা 4টি ঋণের সাথে আবদ্ধ আছি। একটা হচ্ছে পিতৃমাতৃদের কাছে, একটা হচ্ছে দেবতাদের কাছে, একটা হচ্ছে ঋষিদের কাছে, একটা হচ্ছে ভূত অর্থাৎ জীবদের কাছে। আমরা এই চারজনের কাছে আমরা ঋণী। যে সব কিছু ত্যাগ করে মোক্ষ দানকারী মুকুন্দের চরণ কমলে শরণ নিয়েছে, তার আর কোনো কর্তব্য কর্ম থাকে না। এই ঋণটা কাদের জন্য? যারা ভক্তি পথে নয়, ভগবত পথে, মানে ভক্তি পথে যারা না নয় তাদের জন্য। কিন্তু যারা ভক্তি পথে আছে তাদের জন্য এই পিণ্ড দান করতে হয় না। তাদের যে কাজ আছে তা আপনা আপনি থেকে, যদি আমরা ভগবত ভক্তির পথ অনুসরণ করি এবং ভগবানের চরণ কমলে নিজেদেরকে আত্মসমর্পণ করি, তাহলে আমাদের এই যে কাজ আছে সব আপনা আপনি থেকে পূর্ণ হয়ে যায়। আমাদেরকে আর পুনরায় আলাদা করে কোনো কিছু করতে হয় না, আপনা থেকেই সম্পাদিত হয়। আমাদের আলাদা করে আর কোনো প্রকার কর্তব্য কর্ম করতে হয় না। ভগবত ভক্ত অর্জুন সদা সর্বদাই নৈতিক কর্তব্যে অকর্তব্যের প্রতি সচেতন ছিলেন। স্বার্থ সিদ্ধির জন্য পিতা, ভাই, বন্ধু ইত্যাদি হত্যা করা থেকে বিরত থাকাটাকেই তিনি শ্রেয় বলে মনে করতেন। তাই অর্জুনকে যদি শত্রুপক্ষ আক্রমণ করে তবুও সে এই ধরনের আচরণ থেকে ভগবত উন্মোচিত কোমল হৃদয় বৃত্তির পরিচায়ক। অর্জুন দেহাত্মা বুদ্ধির দ্বারা শোকাগ্রস্ত হয়ে ধনুর্বাণ ত্যাগ করে রথের উপর বসে পড়লেন। এই ধরনের কোমল হৃদয় বৃত্তি সম্পন্ন মানুষ কেবল ভগবত ভক্তি সাধন করার মাধ্যমে সমগ্র জগতের যথার্থ মঙ্গল সাধন করতে পারে। হরে কৃষ্ণ। বলে আমার আলোচনা শেষ করছি। হরি বল। हरे कृष्णा। खूप खूप धन्यवाद মাতাজি, আপনি খুব সুন্দর মানে ক্লাস নিয়েছে। আমি জাস্ট হিন্দিতে বলছে, মানে যে হিন্দি ভক্ত আছে তো ও যেন আমি ওনাকে एक्सप्लेन করার চেষ্টা করতে। तो माता जी ने बहुत अच्छे से क्लास लिया, तो बहुत ही सुंदर तरीके से। तो माता जी ने बताया, मैं हिंदी में थोड़ा सा बताता हूँ ताकि जो हिंदी भक्त हैं वो उनको भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो एक्चुअली सभी जितने हिंदू हैं उनको एटलीस्ट जो ये भगवत गीता यथारूप जो है इसको एटलीस्ट एक एक घर में होना चाहिए और वो पढ़ना चाहिए। ये उनको इतना ये होना चाहिए। फिर माता जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि 4 युग है, 4 युग में सतयुग है, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो द्वापर में जो युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र में हुआ था, और जो अभी जो कलयुग का जो है हमारा जो स्थान है वो नवद्वीप है, वो मायापुर है। फिर सभी को जो पहले श्लोकों का ऊपर चर्चा कर दिया, तो माता जी ने फिर 36 से लेके 46 श्लोक के ऊपर माता जी ने पॉइंट आउट किया। तो ये जो श्लोक में अर्जुन ने 4 कारण बताए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो पहले 2 कारण हमने लास्ट क्लास में हमने चर्चा किया था कि एक तो उन्होंने करुणा दिखाया अपने रिश्तेदारों के लिए, फिर दूसरा उन्होंने बताया
कि मैं मेरे अगर अत्यजनों को सबको मारूंगा तो मैं कैसे आनंद करूंगा ये राज्य को। तो ये दो तर्क देखकर उन्होंने कृष्ण भगवान को बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन अभी माताजी ने जो बताया वो तीसरा, तो तीसरा तर्क में अर्जुन क्या बताता है? अर्जुन बताता है कि मैं अगर इनको मारूंगा तो मुझे पाप में भागीदारी लेना पड़ेगा, पाप में। और यहाँ पर अच्छे से एक वर्णन किया है कि 6 टाइप के अत्याचारी हैं, यानी जो इंग्लिश में एग्रेसर बोलते हैं। तो कौन है वो 6? एक जो पॉइजन देते हैं, एक जो विष देते हैं, दूसरा जो दूसरे के घर को आग लगाते हैं, फिर जो दूसरे को हथियार से मारते हैं, और जो चौथा है जो दूसरे का लूटते हैं, पांचवा दूसरे का जमीन लेते हैं, और छठा जो है दूसरे के पत्नी को वो अपहरण करते हैं। तो इन 6 लोगों को अगर आप मार भी दोगे ना तो आपको पाप नहीं लगेगा। तो ये तर्क दो, ये तर्क ये हमारे शास्त्र में लिखा है। लेकिन माताजी ने आगे अच्छे से बताया कि जो अर्जुन है उसका हृदय जो है वो कोमल है। तो इस कोमल हृदय के हिसाब से वो ये तर्क दे रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर आगे जो चौथा कारण बताया कि युद्ध नहीं करूंगा, उसमें बताया है कि वर्ण संकर बोलेगा तो अनवांटेड चाइल्ड, जो बिना बोलते हैं ना। तो उधर तर्क क्या दिया है अर्जुन ने कि अगर सामने जो युद्ध में सभी पुरुष अगर मर जाएं, तो सभी पुरुष अगर मर जाएंगे तो स्त्री जो है वो अकेला हो जाएगी, और उसके वजह से दूसरे लोग उसका फायदा उठाएंगे, और फायदा उठाने के बाद वो जो उसका संतान बनेगा उसका जो है वो वर्ण संकर। और माताजी ने बताया अच्छे से कि जब बाल अवस्था में जो औरत है या बेटी है, जो गृहिणी है, वो पिता के आश्रय में रहती है, और जब वो बड़ी होती है तो वो अपने पति या जो अपना हस्बैंड के साथ इसमें रहती है। और बाद में जब वो वृद्ध होती है तो उसके जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो उसको देखते हैं। तो ये बताया। और माताजी ने बताया कि 4 वर्ण और 4 आश्रम के बारे में बताया। तो 4 वर्ण माताजी ने अच्छे से बताया कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनका क्या क्या कर्तव्य है वो भी बताया। और जो आश्रम है उनका एक एक का उम्र के हिसाब से वो भी बताया कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इसमें से आखिरी में ये सभी 4 जो तर्क देकर अर्जुन ने अपना जो हथियार है, जो गांडीव है, उसको नीचे रखकर उन्होंने कृष्ण भगवान को बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। তো মাতাজি ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণা। তো খুব কৃষ্ণ। খুব সুন্দর। তো এখন আমি একটু যে লাস্ট উইকে প্রশ্ন উত্তর ছিল वो प्रश्न उत्तरे আমি चर्चा করব। ঠিক আছে? এক 5-10 মিনিট। और किसी का कुछ प्रश्न है আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারবে এখন, মাতাজি আছে। और আমি म्हणजे क्या बोलते हैं, हम लोग उसका आंसर दे सकते हैं। तो किसी का हरे कुछ कृष्णा प्रभु जी, प्रश्न है? दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा, दंडवत हरि बोल। प्रणाम। মাতাজি আপনি থাকবেন, प्रश्न जिज्ञासा করবেন উনি। हाँ प्रभु जी पूछिए। কৃষ্ণ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत माता जी आपने बहुत सुंदर कला की है, बहुत सुंदर समझा है। ये आपने वो सनातन धर्म के बारे में आप जब आप बता रही थी तो थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था, हम सुन नहीं पाए हम लोग। हाँ मैं जो वापस रिक्वेस्ट सनातन करता हूँ। धर्म हाँ माताजी तुम्ही जेव्हा का मतलब क्या होता है? হ্যাঁ বলেছিলাম হিন্দু ধর্ম যে সনাতন আছে উনি অ্যাকচুয়ালি জিজ্ঞাসা করছে কি আগে একটু মানে ওর উপরে রিপিট করবেন। উনি শুনতে পাচ্ছে না, ওর নেটওয়ার্ক গন্ডগোল ছিল। হুম, হরে কৃষ্ণ। যেহেতু হিন্দু, আমরা হচ্ছি, আমাদের ধর্ম হচ্ছে সনাতন ধর্ম। আমরা সবাই সনাতন ধর্মের অনুসারী। তো সনাতন শব্দের অর্থ হচ্ছে যা অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এটাই হচ্ছে সনাতন। আমাদের অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এটাই হচ্ছে সনাতন। আর যেহেতু আমরা হিন্দু, আমরা সবাই সনাতন ধর্মের অবলম্বী। আর এই সনাতন ধর্মের অবলম্বী যেহেতু আমরা, এজন্য আমাদেরকে গীতা অধ্যয়ন করতে হবে
এবং অধ্যয়ন করে সবাইকে শোনাতে হবে এবং সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्णा, खूब खूब सुंदर। गजेंद्र प्रभु आप समझ गए ना? तो हम लोग सब हिंदू हैं और हरे कृष्ण सनातन माता जी मतलब दोनों प्रणाम, हरे जो कृष्ण। पहले था वर्तमान में है और आगे भी होगा। तो ये बहुत ही आपको ध्यान, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये जो हमारा जो धर्म है ये पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो ये बहुत सुंदर। तो यदि কাউকে বাংলায় প্রশ্ন আছে তো মাতাজি আমি 5 মিনিট মাতাজি প্রশ্ন। হরে কৃষ্ণ রাজকুমার সসমাল, হ্যাঁ আপনি তো বাংলায় জিজ্ঞাসা করতে পাবেন। हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण, হরে কৃষ্ণ। हरे राम माताजी, धन्यवाद प्रणाम। আচ্ছা, আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে আপনি চারটে স্থানের কথা বলেছিলেন, চারটে যুগের তীর্থস্থান। আমি তিনটে, ত্রেতা যুগে রামেশ্বরম, দ্বাপর যুগে কুরুক্ষেত্র আর কলি যুগে হচ্ছে গঙ্গার তীরবর্তী স্থান হচ্ছে নবদ্বীপ। মাতাজি আমার কোশ্চেন ছিল হচ্ছে সত্য যুগের স্থানটি কি? হরে কৃষ্ণ, হরি বল। হরে কৃষ্ণ। সত্যযুগে হচ্ছে বদরিকা আশ্রম। সত্যযুগে বদরিকা আশ্রম। करेक्ट। হরি বল। हरे कृष्ण। बदरिका आश्रम ना? हाँ, बद्रीनाथ, जिसको हम लोग बद्रीनाथ बोलते हैं ना। थैंक यू राजकुमार ससमाल। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण, और हरि बोल। কাউকে প্রশ্ন আছে? হরে কৃষ্ণ। কাউকে प्रश्न আছে আপনি जिज्ञासा करते पावे, नहीं तो लास्ट क्लास में जो प्रश्न था उसको हम लोग जिज्ञासा करेंगे, ठीक है? किसी का प्रश्न है तो हाँ, तो ठीक माता जी, हम लोग लास्ट क्लास का प्रश्न ओके, हरे कृष्ण। और एक आप पूछो আর একটা কোশ্চেন ছিল মাতাজি। হরে কৃষ্ণ। আমরা চারটে ঈশ্বরের উপর আমাদের ঋণ আছে, সেটা হচ্ছে আমি তিনটে নোট করতে পারি, যেটা হচ্ছে পিতামাতার কাছে, দেবতাদের কাছে, ভূত প্রেতদের কাছে। আর একটা মাতাজি ঋষি। আমরা চারটি ঋণ হচ্ছি পিতামাতাদের কাছে, একটা হচ্ছে দেবতাদের কাছে, আর একটা হচ্ছে ঋষিদের কাছে, আর একটা ভূত মানে হচ্ছে জীবজন্তুদের কাছে। ओके माताजी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू राजकुमार प्रभु जी। ब्रिजमोहन प्रभु, आपको कुछ समझ में आया? कुछ प्रश्न उत्तर कुछ आपको, किसी को अगर कुछ हिंदी में अगर किसी को कुछ अनुवाद चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे अभी सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, तो प्रभु जी इसमें 3 स्थानों के बारे में बताया, चौथा स्थान नहीं समझ में आया प्रभु जी। कलयुग में नवद्वीप बोला माता जी ने। नवद्वीप मायापुर कलयुग में जो नवद्वीप और द्वापर में त्रेता में रामेश्वरम। रामेश्वरम। हाँ बोलिए माता जी, बोलिए। আমি ওনার কথা প্রশ্নটা বুঝতে পারিনি। না না, উনি জিজ্ঞাসা করতে 4 স্থান, আমি রিপিট করতে। हरे कृष्ण माताजी। हाँ, আমি सतयुग में बद्रीनाथ, চারটি যুগে চারটি रामेश्वरम। हाँ, সত্য যুগে হচ্ছে বদরিকা আশ্রম, ত্রেতা যুগে হচ্ছে রামেশ্বর, দাপরে হচ্ছে কুরুক্ষেত্র, আর কলি যুগে হচ্ছে গঙ্গার তীরবর্তী স্থান শ্রীধাম নবদ্বীপ। হরে কৃষ্ণ। आपको पता चल गया अभी प्रभु ब्रिजमोहन प्रभु? हाँ प्रभु जी, पता चल गया प्रभु जी। हरी हरी बोल। थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो এখন জিজ্ঞাসা করব লাস্ট উইকে প্রশ্ন। তো লাস্ট পিসে যে প্রশ্ন ছিল কি অর্জুন দুটো কারণ দিয়েছে প্রশ্ন না করার জন্য कृष्ण भगवान के। तो এটা দুটো কি कारण? मैं हिंदी में बोलता हूँ। अर्जुन ने कृष्ण भगवान को 2 कारण दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो उसके बारे में आपको बताना है। हरे कृष्णा, हरि बोल। जो लास्ट वीक क्लास किया वो आंसर करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा, राजकुमार बोलिए। हरे कृष्णा। अच्छा, एक कारण था, वो है रिश्तेदार के प्रति उनका कमल हृदय, उनका करुणा। करेक्ट। और दूसरा था वो अगर सबको मार देते हैं तो उनका जो खुशी वो किसके साथ बांटेंगे? करेक्ट 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 करेक्ट। इन शॉर्ट
करेक्ट वेरी गुड हरे कृष्णा। राजकुमार ससबल जी, दैट इज द आंसर। तो ये जो श्लोक 28 से के 35 तक था, एक था जो अर्जुन का करुणा अपने जो आत्मीयजन, जो हमारे बोलते हैं ना, जैसे उसके सामने जो रिश्तेदार और वो, और दूसरा कि उन्होंने क्या बताया कि मुझे इनको मारकर मुझे कोई भी खुशी नहीं है, यानी मैं कौरवों को मार के मुझे खुशी मिलेगा नहीं, मुझे जीत में भी मेरे को आनंद नहीं आएगा, और मुझे राज्य मिलेगा तो भी मुझे इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो खूप खूप सुंदर राजकुमार। तो नेक्स्ट प्रश्न ছিল कि अर्जुन যখন ওনার ভিতরে কি क्या क्या उसके अंदर सिम्टम्स आया था, यानी जब उन्होंने सामने अपने आर्मी को देखा तो उसके अंदर क्या क्या भाव आए थे, तो कौन बता सकता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ ब्रिजमोहन प्रभु, बोलिए बोलिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये भाव आया था कि प्रभु जी मेरे से युद्ध करने के लिए कौन कौन आए हैं प्रभु जी, उनको देखने की अभिलाषा। हाँ, लेकिन उसके शरीर में क्या हुआ? ये तो मन में हो गया, शरीर हाँ, के ऊपर क्या अवस्था हुई? शरीर में प्रभु जी उसका धीरे धीरे वाणी भी कमती और उसका हाथ से गांडी खिसकने लगा धीरे धीरे। उसके साथ एक्चुअली 6 चीज हो गया, 6 चीज। कोई बता सकता है? और कोई ऐड करना चाहता है? और गजेंद्र प्रभु, और कोई बताना चाहता है? हरे कृष्णा। ब्रिजमोहन प्रभु ने बंद होने एक लगा सही ना। बताया। हाँ बोलना, क्वेश्चन का आंसर देने का। हरे कृष्णा, कौन बोल रहा है? हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो उनका शरीर में कंपन होने लगा ना, भूकंप जैसा आता है ना, वो कंपन होने लगा ना उसके शरीर में। नहीं, तुम आंसर दे रहे, पूछ रहा है? आंसर है वो। आंसर तो ऐसा, आंसर पूरा बताने का ना, क्या हो गया उसके शरीर में। करेक्ट है, यू आर राइट। हरे कृष्णा। हाँ राजकुमार सुषमल, आप ऐड करो। हरे कृष्णा। मैं कोशिश करूं। हरे कृष्णा। यस यस यस। ओके, इसमें एक तो है जो उनका शरीर कांप रहा था, करेक्ट। दूसरा उनका रंगटे खड़े हो रहे थे और गंडी हाथ से निकल रहा था, और हरि वो बोल। खड़े नहीं हो पा रहे थे वहां पे, करेक्ट। और मूड भी और सब कुछ वो भूल रहे थे, वो कौन है वो सब भूल रहे थे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एक्चुअली 8 चीज हुआ, 8 चीज। मैं रिपीट करता हूँ, सभी ने ऐड किया थोड़ा थोड़ा। तो पहले तो उसका जो हाथ है, वो हाथ जो है वो हिल रहा था, जैसे माता जी ने बोला कंपन। फिर जो गला है, उसका गला जो है वो सूख रहा था। फिर तीसरा क्या था, उसका शरीर पूरा हिल रहा था। फिर जो शरीर में जो रोम है, बोलते हैं ना रोम, वो खड़े हो गए थे। फिर गांडी उसके हाथ से हिल रहा था, उसका चमड़ी जल रहा था, और बाद में वो खड़ा नहीं रह पा रहा था, और वो अपना याददाश्त भूल रहा था। तो ये 8 है। তো যে বাংলায় আমি বলছি, আর রাজকুমার তুমি বাংলায় বলবেন। হরে কৃষ্ণা। हरे कृष्णा। अब मैं कोशिश करता हूँ बंगाली में बोलने को। उनका एक नंबर तो ওনার শরীর কাঁপছিল, হাত কাঁপছিল, গলাটা শুকিয়ে যাচ্ছিল, হাতের লোমগুলো দাঁড়িয়ে পড়ছিল, সোজা হয়ে যাচ্ছিল, নিজের সবকিছু ভুলে যাচ্ছিল, অনেক কিছুই মনে পড়ছিল না, ওকে কি ধারা কিছুই মনে পড়ছিল না। আর শরীরের যে যে ত্বক আছে ওটা যেন জ্বলন হচ্ছিল। करेक्ट करेक्ट, वेरी सुंदर। हरि बोल। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ। और লাস্ট দুটো প্রশ্ন আছে, আমি জিজ্ঞাসা করব, যদি আপনি মানে কোশ্চেন আনসার করতে পাবে ঠিক আছে। অর্জুন কৃষ্ণ ভগবানকে দুটো নাম দিয়ে ডাকছে,
अर्जुन कृष्ण भगवान को दो नाम दिए, नाम से वो उसको पुकारता है, गोविंद और जनार्दन। तो इसका मतलब क्या है? সমস্ত জীবের হ্যালো हाँ হরে কৃষ্ণ हाँ প্রভুজি बोलून দণ্ডবত প্রণাম दंडवत प्रणाम, बोलून बोलून কি সমস্ত अर्थ? জীবের প্রতিপালক পালক इसके लिए उसका नाम जनार्दन बोला और गोविंद গরু মানে অর্থাৎ গরু ইন্দ্রিয়কে আনন্দ দান করেছিলেন বলে একে জনার্দন বলেছিলেন, গোবিন্দ বলেছিলেন। গোবিন্দ বলেছে। হরি বল। কোন আনসার দিয়েছে এটা আমি দেখতে পাচ্ছি না। কোন आंसर दिया? बहुत सुंदर, करेक्ट आंसर है। सनातन प्रभु जी। हाँ, सनातन प्रभु जी खूब। জনার্দন অ্যাকচুয়ালি জনার্দনের অর্থ আছে যে পৃথিবীতে যে ভার আছে, মানে তো ও যে মানে পৃথিবীতে ভার, ও জনার্দন, ও যেন ওনাকে জনার্দন বলছে। আপনি ওটা কারেক্ট বলছে। আর গোবিন্দ আছে দুটো কারণ, এক যে গরু আর এক যে আমার ইন্দ্রিয়। গো, গো মানে ইন্দ্রিয়, গো মানে গরু। এটা যে দুটো ইন্দ্রিয় আছে ওনার, উনি কি বলে, উনি ইন্দ্রিয়কে कंट्रोल করতে পাবে ওনাকে আর সন্তুষ্টি দিতে পাবে। তো करेक्ट आंसर আছে सनातन प्रभु। हरि बोल। और किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज हम लोग विराम लेंगे इधर। और हम लोग जिन्होंने माता जी ने अच्छे से क्लास लिया और उसके लिए, और जिन्होंने आंसर दिया, सभी लोगों ने, सभी भक्तों ने, हम उनके लिए हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं। और फरवरी 1 तारीख को एकादशी है, तो सभी लोग एकादशी का पालन करना। और मेरा रिक्वेस्ट है सभी को, तो सुधामयी माता जी के लिए हम लोग 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे कि उनका परिवार का आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता सभी को 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, फिर वैष्णव प्रणाम बोल के आज का क्लास इधर ही हम लोग समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। तो वांछा हम लोग वैष्णव प्रणाम बोलकर, तो हम लोग और नेक्स्ट वीक में हम लोग इसका समरी लेंगे। मधुसूदन प्रभु, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। नोबनाम माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से माता जी क्लास दिया, और सभी भक्तों का धन्यवाद जिन्होंने ज्वाइन किया। और मेरा यही प्रार्थना है कि भक्तों कैसे जुड़े रहें। दूसरा, जो लोग हमारे साथ में जुड़े उनको जुड़ा रहना ही रहना चाहिए, और साथ में किसी और को भी जोड़ना चाहिए। मैं पिछली बार भी बोला था, अब की बार भी बता रहा हूँ, तो यही कहना है। और दूसरा एक ये था कि जैसे कि अभी बताया कि हमने देखा कि एक उसका जो 36वां श्लोक है, उसमें पहले देखा कि 6 प्रकार के कितने होते हैं, अन्यथा कितने प्रकार के होते हैं? 6 अत्याचार 6 प्रकार के। तो उसमें वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत एक सुंदर बात बता रहे हैं कि जो 6 प्रकार के होते हैं, इन आदमियों को अगर हम वध करते तो हमें क्या नहीं लगेगा? पाप नहीं लगेगा। पाप नहीं लगेगा। तो क्या हमें करना चाहिए ऐसा, मार देना चाहिए किसी को? नहीं। क्यों? प्रभुपाद जी ने तो बोला है, जो अनिताई लोग है, जो झूठ बोलता है, किसी का घर जलाता है, तो उनको मार देना चाहिए। फिर उन्होंने तो बोला ना इसके अंदर। लेकिन अभी नहीं मारना चाहिए, अभी हमको लॉ को हाथ में लेना नहीं चाहिए। सही है। प्रभु जी का उदाहरण बिल्कुल प्रभु जी ने सही बताया है कि हम नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? ये शास्त्र का विधान है। शास्त्र में लिखा गया है कि ये जो लोग ऐसा करते हैं और वो लोग ऐसा कर सकते हैं, जो शुद्ध भक्त है वो कर सकते हैं। मगर उसमें क्या है कि अभी हम इस भौतिक दुनिया में रहते हैं, यहाँ पे जो लॉ ऑर्डर है वो हमें मानना पड़ता है, इसलिए हम लोग नहीं कर सकते। और सरकार की नजर में क्या होता है कि आप किसी जीव और जंतु को मारते हो तो उनकी नजर में पाप नहीं होता है। मगर भगवान के घर में जो 84 लाख योनियां, जैसे कि उदाहरण के लिए अभी जैसे नॉर्थ ईस्ट में आसाम है, मिजोरम, ये अपना मणिपुर इधर है, तो इधर तो मच्छर मारने के लिए सरकार खुद पैसा देती है। सही है। तो वो खुद सरकार, एक बजट उनका, उसमें पैसा देती है, उनको मच्छरों को मारो, तो उनको बोलता पाप नहीं लगेगा। मगर भगवान के घर में ऐसा नहीं है। उनको आप मारोगे तो जो भी उनका वो पाप का, उसका भागीदार हमें बनना ही पड़ेगा, मतलब कि। तो इसलिए हमें इनको नहीं मारना चाहिए। मगर
कोर्ट में या जो लॉ है किसी भी देश का, उसके आधार पे हमें चलना, तो हमें नहीं करना चाहिए। मगर भगवान का जो लॉ है वो अपने आप उनको कर्मों का फल देंगे। सही है। हरि बोल। हरि बोल। सही सही, बहुत बहुत सुंदर। तो मधुसूदन प्रभु ने यही बताया कि जैसे माता जी ने बताया कि 6 अत्याचारी है, हम उनको मार सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे प्रभु जी ने बताया, ये भगवान के शास्त्र में लिखा है कि भाई ये जो ऐसा अत्याचारी है उनको मार सकते हैं, लेकिन हमको लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करना चाहिए। और हमको लेकिन ये समझाने के लिए कि अर्जुन की स्थिति क्या थी, अर्जुन जब बता रहा था कि सामने आत्मजन है जो एक्चुअली वो गलत 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 साइड में थे, उसके लिए। तो प्रभु जी थैंक यू प्रभु। इधर हम लोग सभी को रिक्वेस्ट करेंगे, आप दूसरे लोगों को जी ज्वाइन कराओ, ऐड करो ग्रुप में। हम लोग बांग्ला हिंदी करके ये हम लोग क्लास को अभी पहला चैप्टर खत्म हुआ है, तो नेक्स्ट वीक हम लोग इसका समरी करेंगे। तो हम लोग वैष्णव प्रणाम बोल के आज इधर ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।